Hello guys, I'm Hitesh Wadhwa. I'm a tech consultant with over 20 years of experience. Fine. For last 20 years, I've been into development, designing websites, ERPs, CRMs, etc. etc. Okay. And today we are going to cover about domain aftermarket, or you can say in short about domaining. What domaining is, what are domain names, and what domaining is. Right. Okay. I move on to the next slide. And this will be conducted by me and Mr. Jay Paudya. We both are leading domain investors from India. And I go to the next slide. Next slide is what you will learn from this session. Fine. In this session, we will learn from the basics of domain name, what the domain name is. Then we will move on to the concept of domain name aftermarket. Fine. Then we will move on to the how this business works, like from how you can buy a domain, then how can you sell this domain. Fine. Then we will be talking about the opportunities and challenges of the aftermarket, like while buying and while selling, what the opportunities and what the challenges you are going to face in the aftermarket. The aftermarket is actually a market where you sell your domains, or you can buy your domains also. Fine, at a premium price, not at hand register prices, but at a premium price, right? Then we will be discussing about the type of the domains and their extensions. Okay, the extensions is TLDs, top level domains, CCTLDs, GTD, GTLDs, NGTLDs, etc. Then we will be comparing what are good. We will comparing the between good and bad domains with examples. Right, sir? Is it clear? Should I move to the next slide? Yes, yes, all clear. Can you bit louder? I mean, कुछ लोगों को थोड़ा धीरे सुनाई धीरे आ देता रहा है? है. Okay, I will be. I don't know how to basically increase the volume of mic. No, maybe there's dinner missing from your side. No, I had. Oh, okay, fine. Dinner may be missing. Okay, just a minute. Let me see audio settings. Let's move to next slide. Some people are saying voice is okay. No, I'm just increasing that. Just a minute. Now it's clear. I've increased the volume. All clear, all clear. All clear? Fine. Okay, let me close this. Let me move to the next slide. Okay, this is the next slide. What we learned from this session. Okay, what? Now I start with what is domain name actually. Fine. Domain name is your website name. It is made of strings. It is made of alphabets and numbers. Fine. Which you put on your browser URL box and your website opens. It's simple, your website name, or you can say in the other words, it's your online identity, which basically showcases your business, your products, your services online as a complete website. Okay, or you can also say it is used for finding and identifying computers on the internet. Got it? Am I clear? Yeah, clear. Okay. Next week, okay, this is like you have a domain name. It is basically your website. You open it. It can be a website. It can be blog. It can be e-commerce apps and everything. It is basically considered as a virtual property. What we are going to discuss here is it is considered as a virtual property. Like we have a real estate. Like every property in real estate has a unique address. Similarly, your domain name is also unique address online. It can be an online address for your personal website also. As I said, it can be your personal website, it can be your business website, it can be your e-commerce website where you can sell your products, or it can be a business or a portal where you can sell your services and all, like we are doing on Zoom. It's a service actually. Fine. So how we can draw a comparison between virtual property and real estate property, actually real property, the physical property. Fine. The real property is tangible, basically. Very simple thing. It's tangible. You can touch that property, but in virtual property, the domain names, you cannot touch them. As real estate property, you can basically, as the real estate property price increases, same way your domain name prices and your website prices also increases by the time. As जैसे जैसे वो पॉपुलर होता जाएगा, it will the prices for these will
increase. You can also draw strong comparison between, or strong similarity between stocks and domain name. Like we do a very wise investments in stocks, like in shares, in your mutual funds. In the similar way, we can also do a very good investment in domain names, which can really pay you off well in future. Got my point? Like, as you buy a Reliance share, fine, for $1,000, and after a few years, like 7 to 8 years, you sell it for $2,000. Fine. In the similar way, you can buy a good quality domain. You can say some domain like watch.com or something like good domain name, and you can sell it for millions of dollars. It all depends upon the buyer who is buying it, and the market scenario at that time. Similarly, for the stock market goes. Fine. Then we also have a very strong comparison with gambling also. Fine, between domain names and gambling. Yes, it's a gamble. Domain name is gamble. How? Like you buy basically a brandable name. Fine. The brandable name is a gamble basically. It sells in hundreds and thousands of names. Only one name is basically selected by a buyer to buy a domain name. Similarly, it also depends on the trend. Some domains are trending domains. Trending domains means, like, currently we are suffering from coronavirus. Fine. If I buy a coronavirus domain today, it won't be applicable after 1 or 2 years, and it will be a waste for me. So we have a very strong comparison between gambling and domain name, stocks and domain name, real estate and domain names. Fine. Is it clear? Should I move ahead? Yeah, I have few more points to add actually. Yeah, sure. You can add, sir. See, like if you talk about virtual property versus a real one. I mean, I have one Right. more difference to make. Right. Like if you have a real estate, I mean, people will see that you are having so much properties. उसके पेपर आपको कहीं ना कहीं रखने हैं, इधर बैंक में या घर में. I mean, लोगों को पता चलता है कि आपके पास है, तो किसी ने कहा है कि नजर लग जाती है. Right. And domains are, I mean, यार किसी को पता ही नहीं है कि आपके पास है, तो नजर लगने का कोई सवाल ही नहीं है. Okay. But we do know where it is. Basically, we can check it from who is. Yeah. वो होता है ना, अरे उसने फ्लैट ले लिया भाई. Right. ठीक है. And if we compare, domain name versus stocks में, like, what are the possibilities? I mean, worst case scenario क्या हो सकता है? If you buy any stock, okay, then stock can be zero. I mean, कभी वो दिन आएगा, जीरो भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है, कंपनी खत्म भी हो सकती है. I mean, you don't have control on stocks, okay? And where domain names are concerned, you have complete control, okay? Like, as you renew your domain name every year, you will get ownership of that domain name for life, okay? And see, if you talk about domain name versus gambling, तो gambling, मेरे ख्याल से डोमेन नेम इज नॉट अ गैम्बल. ओके. फॉर मी, क्योंकि सी डोमेन नेम में जो लाइक हमने डोमेन नेम बाय करा, तो इट इज वेरी मच श्योर कि 1 year तक वी आर नॉट गोइंग टू लूज दैट डोमेन नेम. मतलब यार 1 साल तो हमारे पास है. तो गैम्बलिंग में यू कैन लूज योर मनी राइट अवे, देन एंड देयर. राइट गाइस? तो सिंपली इस स्लाइड का मतलब यह है कि डोमेन नेम क्या होता है, एंड देयर इज डोमेन नेम रीसेलिंग बिजनेस आल्सो. आई मीन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू डोमेन नेम बेचना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू रजिस्ट्रेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट कि एज ए डोमेनर, एज ए गुड कंसल्टेंट, यू एक्वायर सम डोमेन, you buy some domain, you register some domains and hold it for some time and try to resell it. जो वो डोमेन नेम आपने रखा हुआ है, उसको आप एक प्रीमियम अमाउंट पे या थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें जोड़ के, जिसको जरूरत है उसको यू कैन सेल दैट डोमेन नेम. इट इज सेम एज, एक एग्जांपल मैं देता हूँ. We all use mobile phone, right? Sometimes we look for premium mobile numbers. कुछ कंपनी होती हैं, they sell premium phone numbers. जैसे जो हमारे टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, उनसे if you ask for a particular number, they will give you some premium price. Let's say, अगर मैं आखिरी में अगर 4
digits repeat हो रहे हैं तो there is some fixed price like 10,000. 5 digits हो रहे हैं तो 10,000 का हो सकता है, 1 लाख का 2 लाख के भी मोबाइल नंबर होते हैं. ओके, एंड कई बार एज ए मतलब एक यूजर की तरह भी हो सकता है मेरे पास 3-4 अच्छे फोन नंबर हों, तो उन फोन नंबर को बेचने के लिए भी मैं साइट पे लिस्ट कर सकता हूँ. आई मीन and it's not about कि सभी प्रीमियम होने चाहिए. Sometimes people look their date of birth in mobile number like 10/10/2020. I mean, sometimes people look for some symbolic number like 786 786 like 108 108, right? Okay, so domains is collection of characters and numbers. फोन नंबर से तो वो इस वे में डिफरेंट है कि डोमेन नेम इज वेब एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, दैट इज यूआरएल, राइट? तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि डोमेन नेम की भी सेकेंडरी मार्केट है. यू कैन कलेक्ट डोमेन नेम लाइक स्टैम्प, टिकट स्टैम्प, लाइक ओल्ड कॉइन्स. ओके, डिफरेंस ये है कि डोमेन नेम्स आर वर्चुअल प्रॉपर्टीज, और आई मीन जैसे ही ये अच्छे नाम अगर हैं, जैसे ही इसकी एजिंग होती जाती है तो इस नाम की वैल्यू बढ़ती जाती है. फाइन. और आई मीन किसी को भी कोई भी अगर डाउट है, दे कैन पुट देयर क्वेश्चन ऑन Q&A सेक्शन, और सेशन के लास्ट में वी विल रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस. नेक्स्ट स्लाइड हितेश जी. Hello. How this business works actually? Simple सा scenario है, like if you are searching a domain name, ठीक है ना, एक end user है, you need a domain name to launch your business or your app or your portal online. You will search for a domain name. Suppose मैं एक domain name search करता हूँ by leatherjackets.com. So I will simply go to GoDaddy or any other registrar where I will be searching this domain name, right? If the domain is found, I will hand register as. If the domain is not found, I will see it is being registered by someone else, right? In this case, either I can approach a domain agent to buy that domain, or I can myself contact that person to buy that domain. I'm just talking about buying right now. I'm not talking about the selling, how I'm going to buy this and sell later on, right? So next is what happens is in this market, like a brand consultant outreaches brands for a domain name. Like I have a keyword domain, and that keyword is beneficial for a brand name. Like suppose I have a tubelights.com, and for that my best client would be a person who is manufacturing a tube light, like Philips हो गया, Lakshman Sylvania हो गया, वगैरह वगैरह. So I would be approaching them to sell them the domain. Okay. And just to add some points, see होता क्या है, like some people might think कि यार I mean वहाँ तो millions of domain world में है, right? तो I mean sometimes people think यार ये industry चलते ही कैसे होगी? I mean अगर मैं domain ले भी लूँ, okay, how people will approach me? How right buyer can I mean search me, right? तो see guys होता क्या है, like if you go by simple logic, suppose करो I'm a professional, yeah, suppose that I'm a businessman or brand owner and I want to start some business, some startup. मैं कोई अपने माइंड में नाम सोचूंगा, आप लोगों ने भी नाम सोचे होंगे, बहुत सारे बिजनेसेस नेम सोचते हैं, राइट? और आजकल क्या ट्रेंड हो रहा है कि नाम सोचने से पहले आई मीन बिफोर फाइनलाइजिंग डोमेन ब्रांड नेम, दे सर्च फॉर डोमेन कि भाई उसका डोमेन नेम फ्री है कि नहीं है. अगर .com फ्री नहीं है एंड दे आर प्लानिंग देयर बिजनेस मार्केट इन इंडिया और इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, तो वो उस कंट्री का CCTLD देखते हैं. CCTLD मींस कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन. जैसे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो .in है. सपोज करो मैं बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं,
अगर मुझे .com नहीं मिलता है तो आई विल लुक फॉर .in, राइट? ठीक है, तो सपोज मैंने .in में अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ओके, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, और जो .com मुझे आज की डेट में नहीं मिला था, हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में फ्री हो जाए और हम जैसे या आप जैसे एस्पायरिंग डोमेनर्स को वो डोमेन दिखाई दे, राइट? तो यू कैन बुक दैट डोमेन नेम। हम यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहे कि अगर किसी का ट्रेडमार्क है या ऑब्वियस ट्रेडमार्क है या कोई फेमस बिजनेस है तो उसका डोमेन आप एक्वायर करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना, राइट? सपोज करो कोई जेनेरिक नेम है, कोई कीवर्ड नेम है, कोई जियो नेम है, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, लेदर शूज। सपोज करो एक डोमेन किसी ने लिया, लेदर शूज online.in, रख, ओके, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया ई कॉमर्स शूज बेचने की, राइट? और आने वाले टाइम में सपोज दैट आपको leathershoes.com मिलता है या leathershoesonline.com मिलता है या buyleathershoes.com मिलता है या .in में ही आप उससे अच्छा डोमेन अगर आपको मिलता है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बुक दैट डोमेन। और अगर कोई $20-30 में कोई बेच रहा है, अगर सपोज करो किसी ने $10 में डोमेन बाय करा, अगर वो $50 में भी अगर डोमेन बेच रहा है आपको, तो यू कैन थिंक कि यार क्या मुझे ये बिजनेस 200, 250 या $150 दे सकता है क्या? ओके, जैसे जैसे आप इस कोर्स को करेंगे तो आप लर्न करेंगे कि लाइक हाउ टू गेस, हाउ टू, आई मीन, लाइक कि कैसे पता चलेगा कि वो डोमेन बाय कर सकता है कि नहीं। उसके लिए कुछ सर्चेस करने होते हैं, लाइक वो कितनी सेल कर रहा होगा, एक एजम्पशन भी लगानी होती है और कुछ टूल्स भी यूज कर सकते हैं, राइट? तो अगर आपको उससे बेटर डोमेन मिलता है तो आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। या वैसे लेदर शूज बनाने वाली और भी कंपनी होती हैं या वेबसाइट्स होती हैं, तो उनको आप अप्रोच करते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा मानता हूं कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ब्रांड कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो बंदा बिजी हो गया अपने बिजनेस को रन करने में, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको ब्रांड वैल्यू की इतनी समझ ना हो, तो आप एक्सपर्ट हो, आप लर्न करते हो, तो यू कैन अप्रोच देम दिस वे, आप उनके पास पहुंच सकते हो, राइट? अगर आपके पास डोमेन नेम वो है, ऐसा भी हो सकता है कि साल 2 साल बाद जब वो कंपनी पैसा कमा ले या कोई उसे गाइड करे, उसकी वेब डेवलपमेंट कंपनी गाइड कर सकती है, उसका फ्रेंड गाइड कर सकता है, उसके घर में लोग गाइड कर सकते हैं, यार ये तुम्हारा डोमेन नेम ना बहुत लंबा है, यार ये तुम्हारा डोमेन नेम ना याद नहीं रहता, यार इस तुम्हारे डोमेन की ना रिकॉल वैल्यू नहीं है, ओके? तो आई मीन दे माइट सर्च कि यार ऑनलाइन देखें उन्होंने हु इज होता है जहां से हम ये देखते हैं कि ये डोमेन फ्री है कि नहीं है, अगर बुक्ड है तो किसके पास है, राइट? अगर हु इज में आपकी डिटेल डली हुई है तो वो आपको कॉल करता है। या हम उस डोमेन पे लैंडिंग पेज लगा सकते हैं, लाइक किसी ने अगर leathershoesonline.com ओपन किया तो उसको एक पेज दिखाई देगा कि दिस डोमेन इज फॉर सेल एंड हाउ दिस ब्रांड नेम कैन help you grow your business. Fine guys, तो वो आपको भी अप्रोच कर सकता है, आप भी उसे अप्रोच कर सकते हो। अब कहते हैं ना कि यार अगर आप अप्रोच करते हो तो मतलब थोड़ी सी, जैसे अगर मुझे सामान बेचना है, अगर मैं किसी के पास जाऊंगा थोड़ी सी मेरी वैल्यू कम हो जाती है, राइट? अगर हाँ कोई मुझे मेरे पास आ रहा है बाय करने के लिए तो मेरे भाव बढ़ जाते हैं। आई मीन एक ये जनरल बट ट्रू परसेप्शन है किसी भी बिजनेस का, राइट? ठीक है ना? तो एंड सम टाइम कोई ब्रांड अपना डोमेन नेम चेंज करना चाहते हैं, आई मीन लंबा नाम है तो छोटा नाम चाहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, paramountcoachingclasses.com, राइट? कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है, आई मीन गवर्नमेंट जॉब्स की या किसी भी टाइप की वो कोचिंग देते हैं और एग्जाम करवाते हैं, और कल को आपको लगता है यार paramountcoaching.com फ्री हो रहा है या मैं इसको paramount.in या paramountcoach.in दे सकता हूं, तो आप वैसे डोमेन बुक कर सकते हैं और इनको आउटरीच कर सकते हैं। अब पैरामाउंट के केस में क्या हुआ कि इस जैसी और कंपनी होनी टफ है, लेकिन अगर आप जियो नेम्स जैसे या कीवर्ड नेम जैसे स्किन क्लिनिक, इस टाइप के डोमेन लेकर भी आप स्किन वालों के पास जा सकते हो। और आई मीन इसकी बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल एडवांस में हम आने वाले टाइम में बात करेंगे, राइट? हितेश जी, हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ सकते हैं। आप, ब्रांड्स आर लुकिंग फॉर डोमेन नेम, ब्रांड्स लुक फॉर शॉर्टर एंड मेमोरेबल नेम्स। आई मीन इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि कई बार ब्रांड नेम छोटे नाम ढूंढते हैं, कई बार वो
आई मीन उनकी कंपनी का नाम बहुत लंबा होता है, तो वो शॉर्ट नेम ढूंढते हैं। जैसे मैं एक नाम दूं, ABCL, abcl.in, abcl.com, राइट। तो ABCL की फुल फॉर्म वाली जो कंपनी होगी वो आपका ये नेम बाय कर सकती है, क्योंकि उसके लिए ये नेम छोटा है, मेमोरेबल है। और लास्ट के पॉइंट में हमने ये बताना चाहा है कि आप एज एन इंडिविजुअल भी काम कर सकते हैं और अपनी पार्टनरशिप फॉर्म बना के, या मतलब कैसे भी आप इसको काम कर सकते हैं। इसको काम करने के लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ थोड़ा एंथुजियाज्म चाहिए और आपको थोड़ा सा लर्निंग चाहिए, मतलब पेशेंस चाहिए, मतलब जो यार हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए होना चाहिए। ये कोई आई मीन क्विक रिच या जल्दी पैसा बनाने की मशीन या कोई स्कीम नहीं है, इसमें राइट। एक पॉइंट ऐड करना है, वो वेल रिसर्च चाहिए इसके अंदर, हाँ, एक अच्छा वेल एक अच्छे रिसर्च, लेवल का, एक अच्छे रिसर्च, लेवल का रिसर्च चाहिए आपको। हाँ, रिसर्च कैसे आएगी? हमारे जो 2-3 वेबिनार होंगे, इससे एडवांस लेवल के भी होंगे, उसमें हम काफी टूल्स बताएंगे, वो करने के बाद आएगी। और यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बेसिक वेबिनार करने के बाद हम एडवांस वेबिनार के कोई फीस लेने वाले हैं, राइट। इट विल बी ऑल फ्री, ओके। अभी सब घर में बैठे हुए हैं और हम लोग 3-4 साल से ऑफलाइन मीटअप्स करते थे अपने ऑफिस में, नोएडा में काफी जगह हम मीटअप्स करते थे नॉलेज कैफे के थ्रू, राइट। तो ये भी हमारा एक इनिशिएटिव है कि हम ऑनलाइन वेबिनार करें, जिससे हम नॉलेज शेयर कर पाए। और जब भी यहाँ पर जो भी बात होती है, जब आप लोग क्वेश्चन करते हैं, तो हमको भी उसमें से सीखने को मिलता है कुछ नया। कभी नए सवाल आते हैं जिनका आंसर हमारे पास नहीं होता, हम उसे ढूंढते हैं, आपको बताते हैं। तो दिस वे ऑल्सो वी लर्न। हितेश जी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड स्लाइड, करो, करो एंड सर। ओवर टू यू। ओके, टाइप ऑफ डोमेन नेम्स। डोमेन नेम कोई टाइप नहीं बोलेंगे, बेसिकली इसको हम कैटेगरीज बोलेंगे कि डिवाइडेड है वो ब्रांडेबल नेम्स में, ईएमडीज में, कीवर्ड्स में, जेनरिक नेम्स में और शॉर्ट नेम्स में। ब्रांडेबल नेम्स होते हैं जो कि एक अच्छे प्रोनाउंसेबल नाम हो, जो कि आपको समझ में आए, और साथ में आपकी वेबसाइट, आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करें उसको वो क्लियरिफाई कर दे। लाइक getmo.com हो गया, yahoo.com हो गया, इस टाइप के जो नाम होते हैं जो कि एक ही सांस में लिए जाएं, उनको ब्रांडेबल नाम बोलते हैं, राइट। EMD डोमेन्स आर बेसिकली एग्जैक्ट मैच डोमेन्स, लाइक buyleathershoes.com हो गया, leatherjackets.com हो गया, carpetcleaning.com हो गया। इस टाइप के डोमेन्स को हम एग्जैक्ट मैच डोमेन करते हैं, जिन कीवर्ड्स जो कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके एग्जैक्टली उसका नाम हो, आपके प्रोडक्ट का नाम हो। नेक्स्ट वी कम टू इज कीवर्ड एंड जियो नेम्स। कीवर्ड नेम्स हो गए जो आपको अभी बताया, लेदर शूज हो गया, ये कीवर्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है। लेदर जैकेट्स हो गया, कारपेट क्लीनिंग हो गया, डिसेबिलिटी लॉयर हो गया। लॉयर में बहुत सारे हैं डोमेन्स ऐसे जो कि आप बेसिकली कीवर्ड डोमेन्स। और जियो डोमेन्स क्या होते हैं? जब उस डोमेन के आगे किसी सिटी, काउंटी, स्टेट या कंट्री का नाम जुड़ जाए उस कीवर्ड के आगे, तो जियो डोमेन्स हो जाते हैं। लाइक Arkansas homerentals.com, Arkansas carpetcleaning.com या masslawfirm.com। तो ये जियो नेम्स है जिनके आगे आपका एक कंट्री का नाम या सिटी का नाम या एक जियो लोकेशन का नाम जुड़ जाता है। बेसिकली वो है, वो एक सिटी भी हो सकती है, एक स्ट्रीट का नाम भी हो सकता है, राइट। नाउ वी गो टू जेनरिक नेम्स। जेनरिक नेम्स क्या होते हैं? जो सिंगल डिजिट नेम होते हैं, बेसिकली इसको हम डिक्शनरी वर्ड भी बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है ना। जैसे computer.com हो गया, software.com हो गया, एक सिंगल या 2 डिजिट का नाम, 2 वर्ड्स का नाम भी हो सकता है, राइट। उनको हम जेनरिक नेम्स बोलते हैं। नेक्स्ट वी कम टू इज शॉर्ट नेम्स। शॉर्ट नेम्स या लिक्विड डोमेन्स, 3 लेटर डोमेन्स हो गए, 4 लेटर डोमेन्स हो गए, या इसमें न्यूमेरिक नंबर डोमेन्स भी हो सकते हैं, यानी 4n मतलब 1111.com हो गया, या 111111.com हो गया। इस तरह इनको हम शॉर्ट नेम्स बोलते हैं, राइट सर? क्लियर है? नाउ आई कम टू द TLDs। ठीक है। TLDs क्या होता है? बेसिकली एवरी डोमेन हैज 2 पार्ट्स, ठीक है ना, which is separated by a dot. Left side of the domain name before the dot is called second level name, और जो राइट साइड पे होता है उसको बोलते हैं हम टॉप लेवल डोमेन्स, जो कि हम डोमेन एक्सटेंशन भी बोलते हैं उसको।
example.com हो गया, .net हो गया, .org हो, .info हो गया, right? TLDs is further divided into three to four more categories. Like one is GTLD, second is CCTLD and GTLDs. TLDs मतलब जो GTLDs होते हैं जो कि नॉर्मली हो गए .com हो गया, .edu हो गया, .info हो गया, और इस तरह से काफी सारे और हैं. उसी तरह CCTLDs क्या हो गया? Basically it is country code top level domain like .in, .co.in, .au, .us, .eu, .pl, .de. DE is basically for Germany. ठीक है ना? उसके बाद में आते हैं NGTL, जो न्यू डोमेन, जब न्यू जेनरिक टॉप लेवल डोमेन्स. ये क्या होते हैं? ये बेसिकली जो नए एक्सटेंशंस फॉर्म हुए थे 2012 के अंदर, करीबन 500 से 600 एक्सटेंशंस और आए थे, वो होते हैं लाइक कैमरा, कार और काफी सारे और हैं. मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक लिंक कॉपी करके. इसके ऊपर नेम डॉट की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आपको सारे के सारे एक्सटेंशंस पता लग जाएंगे. इसके ऊपर मैक्सिमम इन्होंने कवर कर रखा है. ये देखिए, इस पे आपको पूरा कंटेंट भी मिल जाएगा इसके बारे में, और ये सारे एक्सटेंशंस भी पता लग जाएंगे. न्यू TLDs पता लग जाएंगे कौन कौन से हैं, CCTLDs पता लग जाएंगे कौन कौन से हैं, ठीक है ना? और ये सारे के सारे डिटेल्स बता देता है. ये लेगेसी जो फॉलो कर रहे हैं हम लोग वो कौन कौन से हैं, और फीचर कौन कौन से, ये इनके इन्होंने स्पेसिफिक फीचर अपने बता रखे हैं. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ डोमेन नेम्स, ये थोड़ा एक इकट्ठा ही हमने मर्ज कर दिया इसको. नेक्स्ट वी कम टू द स्लाइड इज कॉल्ड. अच्छा, जस्ट टू थोड़ा से मैं बीच में घुस के पॉइंट ऐड कर दूं. हाँ, डेफिनेटली सर, ऐड कीजिए. मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि मैं बीच में घुस. नहीं सर, बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल आप ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट ऐड कर रहे हैं. माय पॉइंट इज, इसमें मेरा क्या लाइक पॉइंट है कि आई मीन जो भी आप देख रहे हैं कि टाइप ऑफ डोमेन्स, ओके, एवरी कैटेगरी, एवरी टाइप का प्रोज एंड कॉन्स हैं. आई मीन इफ लाइक मुझे डोमेन सेल करने हैं या मुझे अपना एक स्टाइल बनाना है, अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है, तो वो जैसे जैसे आप लर्न करते हैं आपको आता है कि यार मेरे को EMDs पिक करने चाहिए, या लाइक मुझे कीवर्ड डोमेन पिक करने चाहिए, या जियो नेम्स पिक करने चाहिए, या CCTLD पिक करने चाहिए, या जेनेरिक नेम पिक करने चाहिए, राइट? सब में डिफरेंस क्या है कि लाइक if you talk about brandable domains, they are a bit different. I mean sometime I mean वो जो नाम है उनका कोई मतलब नहीं होता, like Gadmo, okay, like Google, like Yahoo, these are brands. I mean ऐसे नाम उनको क्यों रखने पड़ते हैं? I mean they cannot pick dictionary word. एक तो dictionary words are limited, and second, these days dictionary words I mean are not trademarkable. I mean उसको ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, तो इसीलिए वो इस टाइप के नेम में जाते होंगे. ओके, जाते हैं एक्चुअली. एंड समटाइम आपने देखा होगा कि कोई सही स्पेलिंग वाले नेम में लोग कोई कैरेक्टर हटा देते हैं ताकि वो उसका डिक्शनरी वर्ड का मीनिंग खत्म हो जाए और ट्रेडमार्केबल भी हो और ब्रांडेबल भी हो और डोमेन भी मिल जाए. एग्जाम्पल है Quikr.com, एग्जाम्पल है Flickr.com, राइट? तो ऐसे आपने बहुत सारे ब्रांड नेम और डोमेन्स देखे होंगे. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट EMD एंड कीवर्ड्स, ये जो दो कैटेगरी हैं, ये ऐसी कैटेगरी हैं जो सबसे ज्यादा सेलेबल हैं. ओके, सेलेबल ये इसलिए नहीं है कि ये डोमेन नेम बहुत ही अच्छे होते हैं. ओके, लंबे नाम भी होते हैं इसमें, राइट? सेलेबल ये इसलिए है बिकॉज suppose we talk about this buyleathershoes.com. You yourself think ki how many people you can outreach for this particular domain. I mean thousands of people in India itself. If I talk about skincareparis.com, so for this particular domain you can outreach again thousands of people in Paris. I mean पेरिस में किसी का भी स्किन केयर क्लिनिक होगा या वो स्किन केयर प्रोडक्ट में डील करता होगा या उसका स्किन केयर स्पा होगा, यू कैन ऑलवेज आउटरीच देम. उनको इस डोमेन से क्या फायदा होगा, राइट? सपोज कोई स्किन केयर क्लिनिक इन पेरिस ढूंढता है, कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स इन पेरिस ढूंढता है, तो उनकी साइट रैंक कर सकती है. और ये स्किन केयर पेरिस
.com ये नाम दिखने में ऐसा है कि ये थोड़ा सा ब्रांड ट्रस्ट पैदा करता है और थोड़ा सा आपको ये दिखाता है कि नेम से ही पता चलता है कि आप पेरिस में हो और आप स्किन केयर में डील करते हो, राइट? तो इस टाइप के डोमेन्स में को आउटरीच करना और आपको डोमेन मिलना भी आसान है और इसका आउटरीच करना भी आसान है क्योंकि ह्यूज ऑडियंस है। ब्रांडेबल नेम का देखो अपना फायदा है। आई मीन सपोज मेरे पास gadmo.com है, सपोज somebody wants to launch their gadget blog या somebody launch to their gadget series या somebody wants to launch their e-commerce for gadgets। आई मीन गैजेट्स के अराउंड कुछ भी उसे लॉन्च करना है तो उसके माइंड में गैडमो नाम आ सकता है, लाइक गैडली, गैडपा, गैडना, गैडगो, ऐसा सोच सोच के ब्रांड रिपीट कर करके गैडमो भी आ सकता है। जैसे मेरे माइंड में आज से 6-7 साल पहले आया था, यार एक गैडमो डोमेन बुक कर लेते हैं, इसका सिंपल सा ये मतलब है गैजेट एंड मोबाइल। ओके अब गैडमो डोमेन की डिफरेंट वैल्यू है। आई मीन अगर वो किसी को लेना ही है और वो अच्छा ब्रांड है तो वो आपको इसके $50,000 भी दे सकता है। ओके अगर नहीं बिकना तो ये इसका कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आप 10 साल तक होल्ड कर लो, राइट? हाँ, बाय लेदर शूज या स्किन केयर पेरिस के केस में वैसा नहीं है, आप आउटरीच करके भी इसे 200, 300, 400, $500 का निकाल सकते हो, राइट? और सीसीटीएलडी की बात करें, इसमें थोड़ा सा रेंज कम हो जाता है क्योंकि वो कंट्री स्पेसिफिक होते हैं। आप सिर्फ उन कंट्री के लोगों को ही टारगेट कर सकते हो, जैसे डॉट इन के केस में। बट कुछ सीसीटीएलडी ऐसे हैं जैसे डॉट सीओ और डॉट टीवी, ये थोड़ा ग्लोबल हैं। टीवी को टीवी वाली कंपनी यूज करती हैं या कोई ऑनलाइन चैनल यूज कर सकता है। डॉट को भी स्टिल कोई कंपनी यूज कर सकती है। जहां तक जेनेरिक नेम्स की हम बात करते हैं, दीज आर सिंगल वर्ड डिक्शनरी नेम एंड दीज आर ह्यूज नेम्स। आई मीन इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। अगर आपको इस टाइप के नाम एक्वायर करने हैं, इवन 2 वर्ड्स भी क्यों ना हो, इवन computersoftware.com क्यों ना हो, इवन bestserver.com क्यों ना हो, right? You have good money to acquire these kind of domain. Or obviously if I mean if it is costlier, then obviously आपको सेल करने में भी थोड़ा टफ होएगा और एक ये रिस्की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। बट जिनके पास पैसा है, दे बाय दिस काइंड ऑफ डोमेन आई मीन एवरी ऑफ्टन, राइट? एंड उसके अलावा शॉर्ट नेम होते हैं। शॉर्ट नेम तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बट ये इसमें आई मीन एक लिक्विड नेचर भी होता है। मतलब जैसे कि सपोज शॉर्ट नेम अगर आपने बाय किए तो उसके बिकने के चांसेस हमेशा ही हैं। आई मीन जब तक पूरा कुछ क्रैश नहीं हो रहा जैसे आजकल हो रहा है, उसके बिकने के चांस हमेशा ही हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड हितेश जी। एक मिनट सर, आप कंटिन्यू कीजिए सर, एक मिनट। हेलो, थोड़ा सा ऊपर कर। हाँ एक मिनट आप कंटिन्यू कीजिए इसको। मैं कुछ एक्चुअली आंसर्स टाइप कर रहा था चैट के अंदर। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए सर इसको, अपॉर्चुनिटी चैनल्स को लेके मैं बीच में ज्वाइन करता हूँ आपको। Sure, sure. All right. Now, like we will cover what kind of opportunities and challenges are there in the market. Okay, like any other businesses, every business has its own set of opportunities and its own set of challenges. I mean, like this business. And if we talk about, see, every business mein what we see, I mean, what kind of investment would be there? I mean, what kind of investment would be required to start any kind of business, any kind of service, वो सब में होता है। तो यहाँ भी वही है। and you all are aware कि आप $2 से लेकर I mean $2 में जैसे कुछ CCTLDs हैं जो आपको $2 में, $3 में, या कभी किसी कंपनी की स्कीम चलती है। आई मीन मैं .com की बात नहीं कर रहा, मैं अदर डोमेन्स की बात कर रहा हूँ। तो वो आपको $2 में भी मिल सकते हैं। डिपेंड्स कि मार्केट में उस वक्त रेट क्या चल रहा है। $2 से लेकर $12 तक के डोमेन, जो कि इफ यू टॉक अबाउट इंडियन रुपीज, आई मीन 800-900 ₹1,000 ₹700 ये रेंज में चलते हैं। तो इसकी इन्वेस्टमेंट इस टाइप से होती है। एंड इफ यू लुक फॉर, जैसे अभी हमने लास्ट स्लाइड में वी टॉक्ड अबाउट एक्सपायर्ड डोमेन्स, वी टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इफ समबडी I mean bought their portfolio few years ago and आज वो free हो गया है, right? तो उस टाइप के डोमेन को भी you can acquire and you can always
सेल टू दोज पीपल जिसने कुछ साल पहले वो डोमेन ढूंढा होगा और उसे नहीं मिला होगा, वो अब आपके पास है, राइट? ठीक है ना? एंड इस टाइप के डोमेन्स आपको $5 में, $10 में, $12 में GoDaddy के क्लोज आउट ऑक्शन में मिल जाते हैं, राइट? ठीक है ना? तो हम GoDaddy का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस टाइप के जो ऑक्शंस हैं, क्लोज आउट ऑक्शंस, वो GoDaddy ही मेनली करवाता है, राइट? ठीक है ना? तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि लाइक सपोज लाखों डोमेन डेली फ्री हो रहे हैं, राइट? उसमें फिल्टर्स हैं, you can put your keywords there like shoes store, like shoes cart, okay? तो आपको एक लिस्ट शो कर देगा कि कौन कौन से डोमेन्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से डोमेन एक्सपायर हो गए हैं कुछ दिनों पहले, जो कि ऑक्शन में आए हैं। रेट $12, $10, $20 कुछ भी हो सकता है। अगर एक डोमेन पे 2 से ज्यादा लोग बिड कर रहे हैं तो $50, $100, $500 भी वो जा सकता है, राइट? लेकिन बिगिनर्स को जब हम बाइंग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, तो हम यही बताएंगे कि आपको चीप से चीप डोमेन खरीदना है और आपको 2-3 महीने बाद उसको कैसे आउटरीच करना स्टार्ट करना है और कैसे वेट करना है, राइट? एंड उसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो $50, $60 के भी डोमेन्स आते हैं। आई मीन ये मैं उन डोमेन्स की बात कर रहा हूँ जो पहले से किसी ने एक्वायर किए हुए हैं, राइट? तो लिमिट नहीं है। सपोज करो यार software.com आपको खरीदना है, तो अगर अवेलेबल है सेल के लिए ह्यूज प्राइस, राइट? मैं अगर एग्जांपल दूं तो फेसबुक ने अपनी वेबसाइट सबसे पहले thefacebook.com पे स्टार्ट करी थी, राइट? और facebook.com किसी और के पास था, तो कुछ सालों बाद जब thefacebook.com अच्छी चल गई तो उसने facebook.com को एक्वायर कर लिया, राइट? कितने में एक्वायर किया ये आप गूगल कर सकते हैं, एक विकिपीडिया का पेज है, वहां पे आई मीन जो भी डोमेन सेल हुए हैं आज तक की हिस्ट्री में, आई मीन जो हाई हाई अमाउंट की एक्विजिशन है वो उसमें दी हुई है, राइट? तो आफ्टर एक्वायरिंग facebook.com कुछ सालों बाद उसने fb.com भी एक्वायर किया, क्योंकि उसकी सेंस बन रही थी एक्चुअली कि facebook.com है, fb उनके लोगों में आता है, लोग fb भी बोलने लग गए थे और एक शॉर्ट यूआरएल भी उनके पास हो जाता था, तो एक्वायर fb.com, राइट? तो सी आई एम गिविंग some example of acquisition here. I'm not talking कि यार आपको ab.com या इस टाइप का डोमेन खरीदना है और ऐसे बेचना है. It is rare, right? And and second, see, अब challenges की बात करते हैं तो what kind of challenges we might face, like decision on domain holding time. I mean, sometime, I mean, if we research less, if we, learn less, तो कभी-कभी क्या हो जाता है, तो we might do mistake in, कि like उस डोमेन को शॉर्ट टाइम के लिए होल्ड करें। शॉर्ट टाइम का मेरा मतलब यहाँ पर 1 साल से है ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी आप डोमेन लेते हो तो यू विल पे फीस ऑफ 1 ईयर, ऑब्वियसली यू विल गेट होल्डिंग टाइम ऑफ 1 ईयर। लॉन्ग टाइम से मेरा मतलब है 3 साल 5 साल, राइट? ठीक है ना? तो सपोज करो यू हैव आपको नहीं पता, कम लर्न किया या एक्सपीरियंस कम है या आपने रिसर्च कम किया है, राइट? यू माइट do this kind of mistake कि you have a not so good domain and you think कि this is good domain and you keep it for long time, let's say 4 साल, 5 years, sometime 10 years, okay? And see, it's not about having good experience, it's not about having good learning. कभी कभी एक्सपर्ट से भी गलती हो जाती है, like मुझसे भी क्या होता है कि like sometime I hold domain for 10 to 15 years. I mean, sometime we see कि यार नहीं ये अच्छा डोमेन है, I think ना, right? I think अच्छा डोमेन है, but वो डोमेन अच्छा नहीं होता क्योंकि मार्केट doesn't think that way. तो मार्केट जिसके हिसाब से चलता है, हमें वैसे ही चलना होता है। फॉर दिस यू नीड टू कीप अपडेटेड योरसेल्फ ऑल द टाइम। बहुत सारे डोमेनियंस के ब्लॉग हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, वहां पे जाकर आप डोमेनिंग के जो न्यू ट्रेंड चल रहे हैं उससे यू कैन कीप अपडेटेड योरसेल्फ, राइट? एंड कभी क्या होता है कि कोई अच्छा डोमेन होता है बट हम उसे शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं और बाद में पता चलता है यार वो डोमेन अच्छा बिक सकता था, राइट? तो यू कैन नॉट डू परफेक्ट टाइमिंग ऑन होल्डिंग, ओके? यू जस्ट हैव टू स्पेक्यूलेट समटाइम, लाइक आपको अजम्पशन करनी होती है कि ऐसा होगा, और अगर आप में स्किल्स हैं, अगर आप में नॉलेज है, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके अजम्पशन राइट जाते हैं, राइट?
A second, impulsive buying and buying without learning properly, right? सी व्हाट हैपन समटाइम, आपकी रियल लाइफ में भी ऐसा होता होगा यार, किसी आई मीन बाजार में गए या ई कॉमर्स की साइट सर्फ कर रहे हो या किसी मॉल में गए हो, तो आप कहते हो वाह कितनी अच्छी चीज है, अरे इतने कम की, अभी बाय कर लेता हूँ, राइट? एंड यू बाय दोस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड इम्पल्सिव बाइंग। आप सोचते नहीं मेरे काम की है कि नहीं है, या आप कई बार सोचते हो यार, कई बार क्या होता है ना, हम घर में वो जो आटा नीडिंग की मशीन लाते हैं कि यार घर में आटा गूंदने में तकलीफ है तो इसको बाय कर लेते हैं, ये मेरा यूज हो गई होगा, राइट? लेकिन जब आप वाकई में लेकर आते हैं, उसको एक दो बार यूज करते हैं, उसके बाद वो यूज नहीं होता है। कई बार हम ऐसे अवन ले आते हैं, कई बार वो यूज नहीं होते, राइट? तो कई बार हम गलत डिसीजन रियल लाइफ में भी ले लेते हैं। तो सेम गोज फॉर डोमेनिंग एज वेल। समटाइम वी टेक रॉन्ग डिसीजंस बिकॉज समटाइम्स सी most of the time it is because of lack of learning, lack of experience, lack of I mean ठोकरें खाना। Okay, कई बार if you do mistakes so often, तो उसके बाद आपको ख्याल आता है कि भाई यार मुझे ये मिस्टेक अब नहीं करनी है, तो यू लर्न बाय योर एक्सपीरियंस। ओके, और मैं हर बार कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट ही सुपर डुपर वो होते हैं और आई मीन वो बहुत राइट डिसीजन लेते हैं। कभी मिस्टेक उनसे भी होती है। कभी क्या होता है कि वो आई मीन डोमेन बेचा, अच्छा पैसा कमा लिया और एक ही बार में एक डोमेन $20,000 का उठा लिया, और कई बार उनको आने वाले टाइम में $15,000 का भी बेचना पड़ता है, राइट? और सी ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ एक्सपीरियंस ही काम नहीं आता, वो हम आगे बात करेंगे, राइट? क्या है अब सेकंड लास्ट पॉइंट, आउटडेटेड नेम्स। आपने सुना कि लाइक अब आउटडेटेड नेम है यार, आई मीन मैं कैसे कंट्रोल करूंगा? एक अगर आप कुछ शर्ट खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं, हाउ कैन यू कंट्रोल कि ये फैशन आउट ऑफ डेट ना हो जाए? हाउ कैन यू कंट्रोल कि ये जो मैंने वॉच पहनी है वो आउट ऑफ डेट ना हो जाए, आउट ऑफ फैशन ना हो जाए? रख ओके, तो कई बार क्या होता है, जैसे टेक्नोलॉजी है, सीडी रोम की बात करता हूँ। जब सीडी रोम था तो सीडी ड्राइव जब होती थी तो उसके डोमेन थोड़े बूम पर थे, वो डोमेन लोग बुक करते रहते थे। तो अचानक पेन ड्राइव आई और चीजें आई, फ्लैश ड्राइव आई, तो सीडी रोम का कंसेप्ट ही नहीं है। आप लैपटॉप लेने जाओ, यू डोंट गेट सीडी रोम, यू डोंट गेट आई मीन पहले क्या होता था, एक सीडी ड्राइव एक्स्ट्रा लेने का भी चलन चला था, बट आजकल तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑनलाइन दीज डेज। ओके, तो in this case CD-ROM like became old technology। तो आई मीन उस डोमेन की अभी कोई वैल्यू नहीं है, एंड कोई भी एक्सपर्ट इसको पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता, बट दे कैन लाइक assumption लगा सकते हैं if they are quite updated with technology, what is happening। I mean सिर्फ ऐसा नहीं है कि I mean you should learn only about domains, you have to learn about other technologies as well जिनसे ये related है। Okay, अगर आप अपडेटेड हो तो आपको पता चलता है या नहीं यार, एक साल बाद ये टेक्नोलॉजी आने वाली है, मैं इस टाइप के डोमेन्स नहीं लेता। ओके, अब TLDs की बात करते हैं। TLDs मींस टॉप लेवल डोमेन्स लाइक .com, .net। ओके, कई बार लोग रॉन्ग TLD में इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे मैं .org की बात करता हूँ, अगर आप लोगे bestshoes.org, राइट, तो यहाँ पर क्या है कि ORG की शूज के साथ सेंस नहीं बन रही, तो बहुत डिफिकल्ट होगा इस डोमेन को सेल करना। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू सेल दिस काइंड ऑफ डोमेन वेयर extension name and you know main name doesn't match, doesn't go well। if you talk about if I talk about like parentalcare.org सेंस बनती है। if I talk about astrologyhelp.org थोड़ी सेंस बन जाती है कि ORG में आपने कुछ कंटेंट बेस्ड साइट बना दी और रन कर दिया, राइट? ठीक है ना? मतलब ORG मोस्टली NGOs, नो प्रॉफिट कंपनीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ कम्युनिटी के लिए ठीक है। जैसे मैं बात करूं aidsonline.org, उसके लिए ठीक है। ओके, इफ इट्स अ कमर्शियल थिंग, डोंट गो फॉर like .org काइंड ऑफ थिंग। हाँ, इफ अगर कोई चांस मिलता है यार, सिंगल वर्ड बहुत ही सुपर डुपर हिट आपके पास .org आ रहा है, लाइक computer.org, उसकी बात डिफरेंट है, राइट? और डिटेलिंग क्या है वो आप आने वाले सेमिनार में लर्न करेंगे। जियो लोकेशन, या कई बार वी पिक some geolocations and sometime
geo areas change. Sometime what happens, उस स्टेट का नाम ही चेंज हो जाता है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट, आई मीन कैलकाटा था कोलकाता हो गया, मद्रास था चेन्नई हो गया, बॉम्बे था मुंबई हो गया, राइट. गुड़गांव गुरुग्राम हो गया. अब सोचो आज से 2-3 साल बाद गुड़गांव वाले डोमेन की क्या वैल्यू रहेगी? बहुत कम हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी. जैसे मद्रास है, मद्रास तो अब कोई नहीं बोलता, अब तो सब चेन्नई चेन्नई हो गया है, राइट. एंड कैलकाटा कोलकाता, राइट. तो धीरे धीरे ऐसे नाम की वैल्यू खत्म हो जाने लगती है. और दीज चैलेंजेस, आई मीन एक्सपर्ट भी हैंडल नहीं कर सकते ना. वो तो यार गवर्नमेंट है, इकोनॉमी है, बहुत कुछ है जो इसको कंट्रोल कर सकती है, बट वो 1 या 2% ही होता है. आई मीन वो तो बैड लक ही होगा जो बुरा फंसेगा, राइट. ठीक है. और इकोनॉमी सी, आप सपोज आपने किसी यूरोपियन कंट्री के बहुत सारे जियो डोमेन्स बुक कर लिए हैं. व्हाट इफ देयर इकोनॉमी कोलैप्सेस? उसमें तो यार उनकी गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर सकती, कोई नहीं बचा सकता. ओके, तो उसका भी कंट्रोल आपके पास नहीं होता. तो ये चैलेंजेस हैं. ये सब लर्न करने के बाद, ये सब स्टडी करने के बाद लोग अपना अपना स्टाइल तैयार कर लेते हैं कि भाई ऐसा चैलेंज आया भी है तो वी आर ओके. और चैलेंज तो यार हर बिजनेस में होता है, राइट. एंड उसके बाद क्या चीज आती है, वी वैल्यू आवर डोमेन अनरियलिस्टिकली. आई मीन $10 का लिया, हमसे 3 लोगों ने पूछा कितने का है, तो आपने कहा कि लाइक बताता हूँ, राइट. आपको किसी ने बोल दिया यार बेच दे तू 1 लाख रुपए का, और आपने अनाप शनाप बोल दिया. आई मीन यू सेट अनरियलिस्टिक प्राइस लाइक समटाइम 5 लाख रुपीज. ओके, आप बोलते तो आपका डोमेन नहीं बिकता. इट हैपन्स कई बार आपके पास ज्यादा इंक्वायरीज आती है ना. यू थिंक यार I'm getting so many inquiries. I mean, I think I have damn good domain. Okay, sometime what happens कि 2-3 ही ऐसे लोग होते हैं जिनको उस टाइप के डोमेन की नीड होती है, and they come to you, and if we they don't get the that name, they run away. They'll definitely find some other name, some other alternate, and they book that and they start their businesses. And you, in this case, you'll get nothing. Okay, so see, try to sell your domain name is in some realistic प्राइस. एक आई मीन जो एक फेयर रीजनेबल प्राइस है उसमें आपको सेल करना होता है. और प्राइसिंग कैसे करते हैं किसी डोमेन की वो हम आने वाले सेशंस में बताएंगे. इमोशंस, समटाइम इमोशंस जो होते हैं दे प्ले आई मीन मेजर रोल इन स्टॉपिंग यू. किसी भी केस में आई मीन समटाइम कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, समटाइम यार आपने लैंड ही ली होती है. कभी कभी क्या होता है कि या शेयर लिए होते हैं, या आप गैम्बल कर रहे होते हो. समटाइम यू थिंक नहीं यार, आई कैन अर्न, आई शुड आई मीन सेल इन बेटर प्राइसिंग कर लूं अपनी. आई मीन सपोज यू गेट 1,000 rupees ka price, then you think I should not sell this domain for 1,000 rupees. I should ask 5,000 rupees. Okay, and sometime you get 5,000 rupees offer. Okay, then so see, sometime greed is supreme. I mean वो आपके माइंड को कंट्रोल करता है, and your mind says नहीं यार, if that person is giving me 5,000 rupees, then this domain is having good value. Certainly, then you ask for 50,000 rupees. Okay, so that way you can lose that deal. And sometimes ego happens. किसी ने बोल दिया like किसी ने बोल दिया नहीं यार मैं तो इतने पैसे दूंगा. Sometimes you see यार like he is hurting my ego. I don't want to sell that particular domain. Okay, क्योंकि see बिजनेस कर रहे हो, इफ अगर आप सेल्समैन हो तो ईगो नहीं होनी चाहिए. हाँ, कोई अगर अनाप शनाप बोल रहा है, कोई अब्यूज कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट. ठीक है. एंड समटाइम लव मतलब आई मीन क्या है कहते हैं बेटर हाफ वाला लव नहीं. यहाँ लव का मतलब है कि डोमेन से आपका जो प्यार हो जाता है. समटाइम हमने ना कोई डोमेन एक अच्छे टाइम पे अच्छे मोमेंट पे लिया होता है, राइट. या समटाइम हमने डोमेन अपने
बुरे टाइम में लिया होता है और उस डोमेन लेने के 2 महीने बाद आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाता है, राइट राइट, देन यू थिंक यार जब से मैंने डोमेन लिया है कि मेरा अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है कि डोमेन मेरे लिए पनौती नहीं है, देन यू स्टार्ट लविंग योर डोमेन. Okay, sometime what happens, your friend says, your colleague says that, oh my god, you are having such a good name. Okay, then you start loving your domain name. Sometimes you post your acquisition in Facebook that ki I bought this domain name for this and this price. Everybody is saying congrats, like good domain. Okay, तो वो आपसे आपको डोमेन से लव करवा देते हैं, प्यार करवा देते हैं, और जितने भी ऑफर मिलते हैं you always reject that those offers because you started loving this domain. I mean, जब आप बिजनेस करते हैं तो ये इमोशंस नहीं रखो ना. ओके, क्योंकि आप बिजनेस करने क्यों आए हैं? क्योंकि यू वांट टू सेल योर डोमेन्स, यू वांट टू कीप आई मीन ट्रांजेक्शन रोटेटिंग, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो आपको मिलेगा. ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे मैं कुछ बातें ऐड करना चाहूंगा कंक्लूजन के लिए कि आपको जो है पूरा वेल रिसर्च करना पड़ेगा किसी भी डोमेन को बाय करने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटी पकड़नी पड़ेगी कि आप उसको $2, $12 या $50 या $5 या उससे ज्यादा में बाय कर सके. यू हैव डोंट हैव टू बाय ईच एंड एवरी डोमेन. आपको उसको अच्छे से अपनी नॉलेज अपडेट करनी पड़ेगी, उसको बाय करना पड़ेगा, और आउटडेटेड डोमेन्स के लिए प्रोएक्टिवली उस डोमेन के ऊपर उसको मॉनिटर करना पड़ेगा उस चीजों को कि आप उनसे एग्जिट कर सको. यू डोंट हैव टू स्टिक टू योर इमोशंस. आप अगर अपने इमोशंस के साथ रहोगे, ग्रीड, ईगो, लव के साथ में, तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर कभी सक्सेस नहीं पा पाओगे, या आपका सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाएगा. गॉट इट? नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now we move to next slide. Next slide कहती है examples of bad domain names. Bad domain names वो होते हैं जहाँ पे हम commercial कीवर्ड को किसी और एक्सटेंशन के साथ जोड़ देते हैं, या जिसके कोई सेंस ही नहीं बनती हैं. Like we say fitnessjunkie.org. It doesn't make sense. इसकी जगह से .com होता तो it would make sense. थोड़ा सा समझ में आता क्या हुआ है. cityonmobile.com again doesn't make sense. ठीक है ना. मोबाइल सिटी होता या सिटी मोबी होता तो शायद मैं सोचता कि इसको हाँ करता. cryptocus.net, it doesn't make a sense at all, क्योंकि इसका क्रिप्टो का किस से कोई लेना देना नहीं है. It doesn't make sense at all. नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं anytime anytype help.com. एक तो बहुत लंबा है. सेकेंडली anytime anytype में, anytime और anytype में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी और समझने में भी, तो और लंबा भी हो गया, तो इट डजंट मेक सेंस एक्चुअली. ऐसा नहीं है कि लंबा डोमेन बिकता नहीं है, 4 वर्ड डोमेन बिकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जियो में वो रेशियो उनकी ज्यादा है. ठीक है, कीवर्ड डोमेन भी बिकते हैं, बट ये इसका भी कुछ सेंस नहीं बन रहा. नेक्स्ट वी कम टू इज डोंट वरी अबाउट लक. माय लक, आर लक शायद बेटर होता है इससे, ठीक है ना, या कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या कुछ किसी एस्ट्रो से रिलेटेड कुछ होता तो शायद समझ में आता. क्लाउड सर्वर bitcoin.com, अगेन इट डजंट मेक सेंस. क्लाउड सर्वर बिटकॉइन, दीज 3 आर सेपरेट थिंग्स. ठीक है ना, उसको हम एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो कुछ सेंस समझ में नहीं आ रही कि ये डोमेन क्या है, राइट. अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. फ्री एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप बाय डेट ऑफ बर्थ, डजंट मेक सेंस. इतना लंबा नाम, और कोई टाइप भी करेगा तो वो बेचारा खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने टाइप क्या कर रहा हूं. तो इट कुड बी freeastrology.com या freehoroscope.com होता, तो या इवन horoscope.dob.com होता, हाँ, तो शायद मुझे समझ में आता कि हाँ ठीक है, सेंस बनती भी हो सकता था, .co.in भी हो सकता था. मतलब है, हाँ. अगर .com में डोमेन फ्री नहीं है और आप इंडियन मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हो, तो you can do, you can book .in also if you are Right. living in Germany या किसी और यूरोपियन कंट्री में, तो you can book CCTLD of that country also. It all depends upon your business model. Right. In short, it should make sense actually कि वो डोमेन क्या बोलना जा रहा है आपके बिजनेस के बारे में. वो सेंस बननी चाहिए कि वो बेसिकली क्या डिनोट करने जा रहा है कि हाँ भाई ये चीज मेरे प्रोजेक्ट के बारे में है, या मेरी वेबसाइट ये बताने वाली है. अभी फ्री एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप बाय डेट ऑफ बर्थ डजंट मेक सेंस एट ऑल.
ठीक है, should I move to next slide? Yes. Now we की डोमेन नेम्स क्या है और उससे बेटरनेट्स क्या है. जैसा भी बात की कि सेंस बननी चाहिए, लाइक और ऊपर देखें हम स्टोर्स मोबाइल की, एक मोबाइल का स्टोर होगा, बट उससे बेटर अल्टरनेट क्या है, मोबाइल स्टोर .com, मोबाइल शॉप .com, मोबाइल कार्ट .com. इट विल मेक मोर सेंस. ठीक है ना. फाइंड लोकेशन अच्छा डोमेन है, ऐसा नहीं है कि बुरा डोमेन है ये, बट इसका बेटर डोमेन क्या होगा, लोकेशन फाइंडर .com. सो वी हैव टू बेसिकली इन फ्यूचर लेसन्स वी विल बी टीचिंग यू कि आप जो एग्जैक्टली डोमेन जो है, बेटर डोमेन्स या बेटर अल्टरनेट्स कैसे उसके निकाल सकते हैं. बिकॉज ये जितने डोमेन हमने लिस्ट किए हैं लेफ्ट साइड पे, ये सब डोमेन्स अवेलेबल नहीं है ना, राइट साइड वाले अवेलेबल है. तो इनसे बेटर डोमेन्स हम कहाँ से ढूंढे, कैसे ढूंढे, क्या अपनी टेक्नोलॉजी लगाएं या क्या अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करें कि ये डोमेन्स हम बाय कर सकें, उस टाइप का डोमेन जो हम कंसीव कर सकें, खुद बना सकें या फिर मार्केट से परचेज कर सकें. अब जैसे मैं चीप होटल्स का .com का एग्जांपल लेता हूँ. चीप होटल्स, ये तो मेरे दिमाग में ही नेगेटिव सा ख्याल आता है. चीप होटल्स मतलब कुछ एक्स रेटेड होटल होगा, ठीक है ना. बट उसके एग्जांपल में अगर लूं मैं बजट होटल्स, तो बजट होटल मेक अ सेंस कि हाँ ये होटल सस्ता होगा, ये मेरी पॉकेट फ्रेंडली होटल्स होंगे यहाँ पे और मैं इस साइट पे जाऊंगा, राइट. नेक्स्ट एग्जांपल आता है होटल इंडिया. अगेन होटल इंडिया, अगर किसी के लिए ब्रांड एक होटल का नाम इंडिया हो और होटल इंडिया हो तो उसके लिए सेंस बनता है. बट अगर हम एक पोर्टल बना रहे हैं जहाँ पे हम सारे होटल इंडियन होटल्स को लिस्ट करेंगे तो इट इज बेटर अल्टरनेट टू बी इंडियन होटल्स. एंड समटाइम क्या होता है कि what I think is sometime like what happens is sometimes some domain rhyme good, you know. Okay, like in my opinion every brand should rhyme good. मतलब अगर एक ब्रांड अच्छा राइम करेगा तो लोगों को बोलना भी आसान होगा और लोगों को याद भी रहेगा, उसकी एक रिकॉल वैल्यू भी होगी. सेम गोस फॉर डोमेन नेम, राइट. तो कहां तक का एग्जांपल लिया था आपने हितेश जी? आप कार्स ऑन रेंट से शुरू कीजिए, है ना. अब देखो कार्स ऑन रेंट के मुकाबले में कार रेंटल्स देखूं तो कार्स ऑन रेंट वैसे भी 3 वर्ड हो गया. कार रेंटल्स बोलने में भी सिंपल है, राइट. ठीक है ना. यह है कि अगर carrentals.com किसी और के पास है, if you are not able to get that domain name, तो you can start with carsonrent.com. I mean एक ब्रांड के लिए तो यही कहा जाता है. तभी तो आने वाले टाइम में आप carsonrent.com वाले को कोई अच्छा डोमेन, कोई बेटर डोमेन बेच सकते हो, राइट. ठीक है ना. सेकेंड इज travelpackages.com. तो ट्रैवल से एक अच्छा वर्ड हॉलीडे साउंड कर रहा है. हॉलीडे इज यू नो थोड़ा सा प्रीमियम वर्ड भी है और थोड़ा सा वाइडली स्पोकन वर्ड भी है. एंड बर्गर ऑन कॉल से अच्छा dialburger.com अच्छा लग रहा है. आई मीन सी राइमिंग गुड, छोटा नाम है, और बेस्ट डाइट से अच्छा नाम परफेक्ट डाइट लग रहा है, राइट. व्हेन यू से बेस्ट, व्हेन यू से परफेक्ट, तो परफेक्ट सही लगता है. देखो बेस्ट में कभी कभी थोड़ा सा वो क्या कहते हैं अहंकार आ जाता है कि लाइक आई एम द बेस्ट. आई मीन थोड़ा सा ईगो फीलिंग आती है, तो इसीलिए इससे बेटर है perfectdiet.com, राइट. ठीक है. और इसका एग्जांपल मैं और देता हूँ आपको. बेस्ट डाइट से बेटर है और परफेक्ट डाइट से बेटर है healthy.diet.com. हाँ बिल्कुल, वो इससे बेटर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल सिंक्रोनाइज करेगा उसके साथ में कि वो मेक सेंस, एक्चुअली बिल्कुल सेंस करेगा. हाँ. एग्जैक्टली. तो देखा कि लाइक देयर इज नो लिमिट. एक से बेटर डोमेन होगा, उससे बेटर ऑल्टरनेट होगा, उससे बेटर ऑल्टरनेट होगा. इसीलिए जब भी डील अच्छी मिले या थोड़ा कम भी मिले, प्रॉफिट हो रहा है तो बेच डालो, बिकॉज एवरीबडी हैज ऑल्टरनेट. ओके. नेक्स्ट thefacebook.com. ऑब्वियसली facebook.com अच्छा है. ओके, मेक सेंस. नेक्स्ट स्लाइड. Next slide is thank you. And Thank we are you. ready for question and We can answers. start with Q&A. हितेश जी, सर मैं क्वेश्चन आंसर्स खोल रहा हूँ सारे के सारे. हाँ, मैं खोल दिया. मैं खोल रहा हूँ. एक अनोनिमस अटेंडी हैं जिन्होंने कहा है, कैन बी, इज देयर अ वे, एनी वे दिस मीटिंग कैन बी एक्सेस लेटर, आई हैव टू रश टू बाय द ग्रोसरीज. यस सर, आपको ये अवेलेबल होगा बाद में. Yes, we will provide recording as well. और Facebook में भी ये live हो रहा है and you can view in Facebook as well. Right. And आने वाले टाइम में we will do more webinars on same topic and advanced topic as well. Thank you. नेक्स्ट इसको डन कर देते हैं, इसको भी डिसमिस कर देते हैं. ओके, संगम कुमार झा इज आस्किंग, कैन आई मेक अ फ्री डोमेन? यस ऑफ कोर्स, देयर वर सम एक्सटेंशंस जो कि पहले फ्री में अवेलेबल थे. आज भी मेरे को शायद किसी ने डाला है कि शायद .shop इज अवेलेबल फॉर फ्री.
ये क्या डिपेंड करता है, बेसिकली रजिस्ट्रार्स जो होते हैं वो फ्री में ऑफर करते हैं कुछ डोमेन्स, लाइक पीछे काफी वाइडली शायद अभी भी अवेलेबल है .tk डोमेन, वो बहुत वाइडली हमारे जो ब्लॉगिंग के स्पैमर्स हैं वो काफी यूज करते हैं इसके ऊपर, जो सीपीए के चलाते हैं अपने ऑफर्स, वो काफी यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। बाकी आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे जब आप डोमेन नेम में घुसेंगे, जो कि आपको 2 से लेके $10 तक, $5 तक, $6 तक काफी ऑफर्स आते हैं जिसमें आप डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। .com की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी बाकी एक्सटेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे अभी .in का निकला हुआ है ₹200 का, प्लस उसके ऊपर जीएसटी लगता है। .in का भी ऑफर निकला हुआ है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ओके, आंसर लाइव डन हो गया। Now how I will understand that if I'm making a domain name like anything and it will be useful? समझ में नहीं आया सर आपका क्वेश्चन, anonymous attendee. How I will understand that if I'm making a domain name like anything and it will be useful? See, I think he's talking about. I think he's talking about developing a domain name, right, sir? maybe he's talking about how do I make sure that this domain is good and this is bad. I mean, it comes with learning and experience. Learning, yes. This is what we are going to teach in further in future webinars कि आप कैसे उस डोमेन को बाय करोगे, क्या सोच के बाय करोगे, इसमें हम आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ में समझाएंगे। और इट विल बी, यस, एवरी डोमेन इज अ यूजफुल टू, किसी ना किसी के लिए यूजफुल होता है वो डोमेन, ठीक है ना। बट उसके लिए आपको प्रोएक्टिवली, जैसे मैंने बोला, प्रोएक्टिवली एक्टिव रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा उस ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट्स आंसर्ड। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सईद समीर जी। और अनोनिमस अटेंडी है जीएसटी, यार अनोनिमस क्यों पूछ रहे हो जीएसटी? अच्छा सवाल सर बिल्कुल बिल्कुल सर, जीएसटी टैक्स डिपार्टमेंट से भी नहीं है और आपको कोई रेड भी नहीं करेगा। एनीवे, यस, डोमेन्स में जीएसटी लगता है अगर आप किसी इंडियन कंपनी से बाय करते हैं, राइट, 18% जीएसटी लगता है। से बाय करते हैं तो एज पर रूल अभी जीएसटी नहीं लगता, राइट। और सी, अगर आप इंडियन कंपनी से बाय करते हैं, अगर जीएसटी लगता भी है तो इफ यू ऑलरेडी हैव जीएसटी नंबर, यू कैन टेक ऑलवेज इनपुट, कोई ऐसा लॉस नहीं होता। राइट, डन कर देते हैं। नेक्स्ट है मिस्टर विपुल कुमार। हाउ कैन वी गेट डोमेन्स विद कस्टम टीएलडीज लाइक nav.al? वो बात कर रहे हैं एएल की। यस, यू कैन बाय, हैंड रजिस्टर कर सकते हो आप इसको, आफ्टर मार्केट से बाय कर सकते हो। मेरे ख्याल से nav.al नहीं अवेलेबल होगा। इससे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, टाइम मैगजीन यूज करती है time.com, और साथ में वो ti.me भी यूज करती है, तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट इट, ठीक है ना। बट यस, ऑफ कोर्स यू कैन मेक अ, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली डोमेन हैक, राइट। तो हाँ, तो ये आपका मेरे ख्याल से आंसर हो गया है। हाय इराना, I mean, Irana is asking, I want to sell iplcraze.com. Sir, we have just said, like, don't go for obvious trademark domains. Don't go for, popular events name, whether they are trademark or not. Don't go for that domain. इससे अच्छा you can buy something like cricketcraze.com या cricketcrazy.com या crazy.cricket.com. I mean, you will find so many alternate for this particular niche. So why to abuse someone else's like IPL craze kind of thing? Okay, what I can do, see, IPL craze is बहुत अच्छा डोमेन नेम नहीं है क्योंकि थोड़ा सा स्पेलिंग का इसमें ऐसा कुछ है। Okay, what you can do, you can give that domain to them. They might give you a thank note by using their Twitter account. I mean, in this case, this can be done only. Guys, again, don't buy domains which have trademarks. Don't abuse the brand names. It's a genuine request, right, sir? Let's move to the next question. Vishal ji, like right now we are not doing appraisals. Actually, आने वाले webinar में we will do appraisals, जहाँ से like people will understand more, or like we will also tell how do we evaluate domain names. Right. And done कर देते हैं। attendee, what is the average holding period of any domain?
See, that depends. That depends. See, if last week, I have seen some people booking jantacurfew.com, jantacurfew.in, jantacurfewco.in, right? Okay. See, if Janta Curfew is here for ages, then you can hold it for long. Okay. If it is not going to survive, then I mean, पहली बात तो you should not book these kind of event-based domain names because these kind of events are short. Okay. Okay, and these kind of domains are not good for reselling. I mean, not good for buying as a domain investor. Yes, of course, if you are planning to develop some website and develop some content around it, and you are able to viral that particular site in those days, then in future you can convert that site to something else. Like you can make jantacurfew.com for making a complaint website. Right. So next, what Next are is the different categories and which category is valued most? See, to answer this question, like I would like to say, suppose I'm a dentist and I have attended few conferences of domaining. Okay, what I can do best is, if I understood this domaining concept, what I can do, I can book domain names around dental thing. I can build my niche around that dental thing, right? You know why? Because it makes sense. Why? Because I know in and outs of a dental industry, being a dentist. Okay. right. Like then I can assume what kind of pricing are there in dental surgeries and other dental procedures. Okay. And it is very easy to find different dental surgeon or different dental clinic for me because I'm living in that zone. I must I should have some good access to some directory, good access to some forum, or I might be attending some dental related conferences where I can pitch those domain names in this way. You can select your category. Apart from this, some categories are good, like law category, skin category. Insurance category is the greatest one right I now. mean, these are hot because, uh, uh, and these are hot for some country. If I talk about legal nation, India, very less value because Indian lawyers don't charge good fees. I mean, most of the lawyers, if you talk about European countries, if you talk about Canada, if you talk about America, they have good fees. They have Right. good capacity to pay you. That's Right. why for these kind of country and these kind of category do well. And which country buys most the domains? Answer is US. US buys the most of the domains. चाहे वो What is the कैटेगरी worth? डोमेन हो, चाहे वो जियो डोमेन हो, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, What यूएस. is next question is what is the worth of .in? That depends. I mean, कभी कभी .in की वर्थ .com से भी ज्यादा होती है. It depends क्या डोमेन नेम आपके पास है. And there is one thing कि with .in you can pitch only Indian customer. Okay, sometime some international client can buy your domain name. Sometime it happens because .in means in also. In means which is in trend. .in means international also here, right? Right. Or uh, anonymous attendee. Isn't domain in industry not yet saturated? There are so many sales happening these days as well. Right. So many buying, so many selling in this Corona days as well. And see, every industry, have this kind of curve, up and down. Sometime W, sometime M. हर industry में होता है. See, saturation में downfall, not saturation, because saturation इसलिए नहीं होएगी क्योंकि there are many companies to come. There are many industries to come online. Okay. यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा. जो डोमेन्स ट्रेंडिंग रहते हैं, जो डोमेन्स इवेंट बेस्ड रहते हैं, वो टाइम बीइंग के साथ जैसे ही वो टॉपिक खत्म होता है,
उसी टाइम वो डोमेन जो है वो सैचुरेट हो जाता है. Got it? And how much investment Investment. beginner should start with, and what is average ROI? इन्वेस्टमेंट तो वी से कि $5 5 डोमेन खरीदो, $40-50 लगाओ और 1 साल तक लर्न भी करो, आउटरीच भी करो, बेचने का भी ट्राई करो, इतना काफी है. ओके, Right. ज्यादा पैसा है तो देयर इज नो लिमिट. And Vipul Kumar कह रहे हैं, I purchased a domain last year. Now it has expired and I don't prefer it for renewal. But now when I'm searching for it, GoDaddy is showing under premium category. Although no one has registered it again, what is the registrar strategy behind it? Well, what exactly happens is कि जब आपका डोमेन एक्सपायर होता है तो GoDaddy जो है वो उसको क्लोजआउट्स पे डालता है, राइट, बिफोर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक. पहले वो क्लोजआउट्स पे डालता है, बाद में वो एक रिडेम्पशन पीरियड में जाता है. तो बाद में आपको मतलब आज से करीबन 60-70 दिन बाद वो अवेलेबल होगा नॉर्मल मार्केट के लिए डोमेन रजिस्टर करने के लिए. अभी नहीं होगा. तब तक आप उसको वापस रिन्यू करा सकते हो या उसको एट अ लेटर स्टेज 12-13 दिन बाद उसको रिडेम्पशन पीरियड में जब वो आएगा तो उसको हायर कॉस्ट पर रिन्यू करा सकते हो. अगर वो डोमेन सेंस करता है तो आप उसको रजिस्टर जरूर करवाइए वापस, अगर वो कीवर्ड बेस्ड डोमेन है तो. आई होप इट आंसर्ड यू. Answer your question. Next is Vipul Kumar again. So what about exact match domain with org tld? कुछ EMDs जो होते हैं वो .org के साथ में अच्छे लगते हैं, लाइक healthyroutine.org हो गया या कुछ healthyfitness.org हो गया. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर इवेंट को रन करने जा रही है या कुछ नॉन कमर्शियल इवेंट करने जा रही है या कुछ नॉन कमर्शियल चीजें हों, उसके साथ में .org एक्सटेंशन EMD में सूट करता है. और you should buy it and try to sell it, though you won't be paid much amount for that, but it is basically you can do that. Done हो गया. Okay, next one is anonymous attendee. सर, किसी ब्रांड का मैचिंग डोमेन लेने पे बाद में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? बिल्कुल प्रॉब्लम होती है. इसका हम आंसर आपको दे चुके हैं कि किसी भी ब्रांड नेम से मैचिंग डोमेन अगर आप किसी के TM वायलेशन करोगे तो वो आपको स्यू कर सकती है और आप बहुत बड़ी ट्रबल में आ सकते हैं. What is the best market place for .ins? ये हम आपको लेटर समझाएंगे, बट बताएंगे सब कुछ. लेकिन for me, one of my friends Shiva is running a marketplace called dash.com. आप उस पर जाके .in अपना डोमेन लिस्ट कीजिए और you try to sell over there. Okay, next one is it any market for religious community related domains? I have bhagwa.org. Should I renew or let it go? रिलीजियस एंड कम्युनिटी डोमेन की वैल्यू है, बट प्रेफर कि you donate them, right, and make your karma good. right, बिल्कुल. I mean, make some, earn some punya out of it doing this charity. But bhagwa.org is nice name. Right, yes, you should renew it. You should renew it and keep it कि आप बाद में बेशक डोनेट करो. बेसिकली मैं होता तो शायद डेवलप कर देता इसे. नहीं, हाँ, मैं भी होता तो आई वुड हैव डेवलप्ड इट. आई मीन, अगर बेचना हो मतलब $40-50 में, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस. चलिए नेक्स्ट आंसर देता हूं मैं. I have seen most of the US companies using .in TLDs. Why do they do that? See, पहली बात तो ये है कि जब .com कंपनी अगर होती है वो .in बाय करने वाली होती है तो इसका पहला मतलब होता है कि वो कहीं इंडिया में लॉन्च करने वाली है. दूसरा .in का मतलब इंटरनेशनल भी होता है, तो इसी वजह से वो लोग बाय करते होंगे कि शायद .com अगर उनको नहीं मिला जो यूएस कंपनी है तो .in प्रेफर कर लेती है, तो उसको .in का हम इंटरनेशनल भी लेते हैं वो लोग. And sometimes what happens is .in creates good hack. Yes, of course. Okay. जैसे Bitcoin हो गया, bit.co.in. It means Bitcoin. Like मैं बात करता हूँ, like best tin है. Yes. So what they can buy best.t.in. Best tin. Right. Just make their brand catchy. And see, not in US company, there are many countries where businesses are buying .in these days, because .in means
means which is in trend, जो in है. I mean in means sometime international. See, like .tv is also ccTLD, .co also ccTLD, but companies are using those domains globally because Right. sometimes they don't get .com. Yeah. Most of the tech companies are using .io. We know that. आंसर लाइव ये हो गया सर, डन कर देते हैं. ओके, अगेन जतिन बत्रा इज आस्किंग इफ आई हैव .in डोमेन देन कैन इट रैंक बेटर फॉर अदर कंट्री. सर ये तो एसईओ का क्वेश्चन और ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो गया. ऑफ कोर्स आई थिंक सो यू कैन रैंक इट, पर अगर .in में होगा तो वो इंडिया में होगा तो वो ज्यादा अच्छा रैंक करेगा. Might But of take course it you can, also be like any TLD, any domain can perform well as yes far yes as yes 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 SEO is बट वो concerned. हाँ, बट अपनी स्पेसिफिक कंट्री में ज्यादा अच्छा रैंक करेगा. हाँ, कि राइट. ब्रांड अच्छा बन जाता है. हाँ, I राइट did purchase few domain name, mostly keyword domains, listed them on Dan. I never get any offer. I know this is very. See, अब ये क्यों नहीं मिला आदित्य? We can evaluate this in upcoming webinars where we can take a practical example like yours. We can discuss then and there, and we can tell you why you are not getting offers and where to list, how to list, so that you can Right. start getting offers. Okay. But try to list your domains in multiple after marketplaces like Dan हो गया, Afternic हो गया. Afternic is the biggest market. आप उस पर list कीजिए अपना domain. If your domain is you like you are saying कि आपका generic वो है keyword mostly keyword है जो भी है, तो वो list हो जाना चाहिए, वो बिक जाना चाहिए मेरे हिसाब से. Next is, can you give winning example where you have buy the domain in X price and sell it for premium price? In this industry, there are so many examples. If you go to dnjournal.com, if you go to, there are more a platform like namepros.com, Right. then you'll find there you will find so many stories. People buying domain for $10, people buying domain for $20, and they are getting $1,000. Sometimes they get the $50,000 also, right? Or I mean, if my example is concerned, my own personal experience is concerned, sometimes we buy a domain for $20 or $10, it sells for $35,000. It happens, and Right, it happens. Yes. doesn't sell. Sometimes it doesn't sell. तो जो अच्छे डोमेन में प्राइस बाय होते हैं, they make averaging good actually. Right. In future webinars, we'll be teaching you कि कैसे वो buy करना है और किस price पे वो बेचना है. What will be the premium price? We'll be telling you. Sir, movies when you see अभी हम appraisal नहीं कर रहे. We are not doing appraisal. Right. Upcoming webinars में we will definitely do that. Right. अब ये भी समझाएंगे कि why this domain is good, why this domain is not good. Okay, next question. Hi तुषार. No views. दोनों डोमेन बहुत अच्छे हैं, दोनों के दोनों. You're a pro यार. चलो anyway, दोनों डोमेन अच्छे हैं. Next time ये हम next time करेंगे. What would you advise to invest in .in because most of good domains say yes, you can invest in .in as well, but look for premium .in. मतलब premium .in means अच्छे नाम होने चाहिए. It's not ऐसा ना हो कि like you buy 2 or 3 words domain. Right. Try to buy single word domain. Try to buy 2 good word. Right. Still, there are a lot of premium domains like single word domains still available in .in. You can go and buy them. Just you have to just do your research, Google them, and it will be in your hands. Like अभी तो नहीं, but हाँ, of course, 2-3 years के अंदर they do hold a very very bright future. Anonymous attendee guidelines of which domains to buy and which do not. We will do in future. Like next semester. Coming month में हम करेंगे. सर एज ए न्यूबी ब्रांड जाना चाहिए या जियो डोमेन? सैयद जी, एज ए न्यूबी आपको जियो डोमेन पे जाना चाहिए. राइट, बिल्कुल. यू शुड स्टार्ट योर करियर विद जियो डोमेन्स एंड कीवर्ड डोमेन्स. दैट इज द बेस्ट थिंग. इसमें क्या है कि आपका पैसे का जो लॉस होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा. आई डू स्टिल सेल लॉट ऑफ जियो डोमेन्स. मेरा ऑटोमेटिकली डोमेन्स है. आई हैव मेड अ सिस्टम बेसिकली जिससे मेरा ऑलमोस्ट 7 से 8 डोमेन जियो डोमेन्स हर महीने बिकता है. या हरी, it matters a lot. I mean, if you
mail them by at yourbrandname.com. It will definitely give them some sense of, professionalism, Yes. some sense of, brand value. Okay, if Right. you mail them by using Gmail ID, sometime they think you might be some, spammer or, scammer. Because like anybody can make free Gmail ID actually. So Right. it matters a lot. Okay, but in beginning we advise newbies to use Gmail address also, because outreaching with brand name, outreaching with your brandable domain requires lot of care, Yes. because it should not blacklist your IP or your domain name. Right. And we will talk about this in detail in our, next webinar, Right. So next on question what are is, different extension and which extension is sold more value more. See, .com is king, and as far as India is concerned, India mein people start preferring .in soon, because right. तो खत्म ही हो रहे हैं ना. Next, एक .pk .ca बहुत टाइम से फ्री डोमेन्स क्यों हैं, एंड व्हाई डोंट वी यूज दिस डोमेन यूजुअली. सर, डोमेन फ्री कब होते हैं? जब उनको कोई खरीदता नहीं है, राइट. ये फ्री है. अभी वो रजिस्ट्रार्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, हो सकता है बाद में वो फ्यूचर में बाद में करें, charge बट करें. बहुत सारी ऑफर्स आती हैं, लाइक यू हैव टू बाय द हाँ, डोमेन्स फॉर फ्री, दे ऑफर, कल बट अनाउंस लेटर ऑन उनका 3000 4000 रिन्यूअल प्राइस होता है. when is the next webinar extending to this one? April first week में we will do advanced webinar. जिन्होंने भी ये webinar attend किया है, we will do next webinar, advanced webinar for them, where we will talk about particularly buying domain names, where to sell, where to pitch purchase domains. Coming soon, my dear. Syed sir, Jio domain को outreach कैसे करना चाहिए, वो हम outreach session में बताएंगे आपको सब कुछ. Manoj Kumar, kindly conduct the webinars only on this time, but not on mornings. Like Manoj ji, last webinar we did at 9 p.m. Then we got so many, requests. Make it 8 p.m. because 9 p.m. से 10:30 तक जाता है. तो sometimes they want to sleep early. Sometimes they have different things to do. Okay, so we will certainly do webinar in late evenings, not mornings. Not mornings. It will be in evening, 8 p.m. How we, Syed ji, how we get notification for second webinar? Okay, how did you get this time? Same medium, same platform. Same platform you will get it. Yeah. So I think we are done. All questions are answered. I think so. Like और कुछ छूट गया है तो we will try to cover that next time. And right. Hitesh ji, एक दो questions we can take from Facebook Live. Okay, there are. Okay, sir, you read those questions because I don't have a Facebook right now on my laptop. Engineer Himanshu Chaurasia, where is the best platform to sell the domain? The best platform is Afternic. Okay, you can because it is connected to various registrars also, जहाँ पे आपका domain list हो जाता है. Yeah, they have largest network है उनका, बहुत बड़ा network है. So they are 40-50 registrars basically incorporated with them, जहाँ पे आपका domain list हो जाता है. तो it's best platform basically. Though you have to wait for 2 months, जैसे आप domain register करते हो या acquire करते हो, तो holding period के बाद में ही वो list करने देता है. Right, and the best way is to make it a fast transfer. Like उसको buy now price पे डालो. It is the best way. Second question is from again Himanshu. If I have a domain, NGO niche domain who links with Forbes and some .edu website, how can I pitch the customer? Saji, if you have good backlinks, if you are getting good traffic, you can always pitch your domain with some good stats, like I'm getting this traffic. Okay, इसके बारे में detail में obviously we will talk about in next seminar. Avinash is saying English please, bro. Avinash, we are mixing both the languages, right? Everybody can learn, everybody can understand things, and we will definitely do English only seminar webinars in the future, right? India.
Yes. Definitely do very soon. Yes. Okay. And again, NGO type domain की resale value or not है जी, domain अच्छा है तो every type की resale value है. And please share outbound sales and sales copy please. Up in upcoming webinars में we will definitely share outbound sales strategy with good sales copy, mail templates and all. Okay. And that's all. That's all. That's all. So guys, I'm Jay Podiyal. This is Hitesh Wadhwa. I hope this is meetup. Okay, let's run एक poll run करते हैं guys. Please answer this poll. वो run कर देते हैं and launch. Guys, poll का answer दे दो. हमने एक poll launch किया है. And thank you for joining us. Thank you very much for joining us. April 1st week में we are going to launch some damn good webinars on selecting domain names and good strategy for buying domain names. Okay. Right. So और जो feedback देना है, you can always give your feedback जिस भी channel से आप आए हैं, and you can always put your feedback in chat window so that we can improve, so that we can improve our content as well. We can improve our style of giving example and Right. steps as well. And sometime अगर time सही नहीं है तो we can improve on time as well. कि थोड़ा छोटा रखना है, थोड़ा लंबा रखना है. If you want some other early time, okay, ठीक है ना? तो so far we have 8 votes out of 13. Should we wait for 2 to 3 minutes? Like मेरे ख्याल से वो लोग enter कर रहे हैं. We can wait for 2 to 3 minutes. Yeah. And if you have any more questions, you can ask. एक दो questions ले सकते हैं अभी हम लोग. Till the polling is going on. I think it's done. Jay, let's sign off. No, we have a question here. This is the right time for webinar? Yes, Ujjwal. This is the right time for a webinar. We start at 8 or whatever the time will be in the future, we will let you know. Please do the webinar every week. We will try to do webinar every week, but it would be a Saturday or Sunday. It would most probably it will be Saturday. But these days, every day is it is a yes. I hope you guys are following basically the lockdown thing. Yeah. So guys, thank you. We are signing off. Thank you very much. Thank you very much, everyone. Yeah. See you soon. See you soon. Yeah. Yeah. Right. Have safe time. Stay home, stay safe.